Hello students, good evening. Today we are going to discuss summary of A Tale of Two Cities by Charles Dickens. Here I would like to tell you that I'm not going to speak much detail about the summary. I will speak just in a way you will be able to understand what is the story. Okay, so let us start. A Tale of Two Cities. So that's a two cities are what are the two cities? That's a Paris and England, right? So this is the tale of these two cities. Okay. Now, before proceeding, we have to know the French Revolution because this novel is um, written on the French Revolution. So let us see that's about the French Revolution. The French Revolution was a decade long, 1789 to 1799, 10 years, right? Period of profound social and political upheaval in France, right? So as you know that this is the era where in the France that's a 10 years, right? So that everywhere chaos and then the main social and political upheaval were there. So then marked by the overthrow of the absolute monarchy. So what happened that that's a dictatorship monarchy was going on, and then people were very much tired, frustrated because they were targeting by the noble and well-off families, right? So the abolition of feudalism, and so that was the overthrow of absolute monarchy, then abolition of feudalism, right? And the establishment of the first French Republic. So that's a then it became republic, all driven by ideals of liberty, equality, and fraternity. So in the name of liberty, equality, and fraternity, that's how it's all driven, and then triggered by fiscal crisis and social inequality. It saw the rise of revolutionary and reactionary forces, and then people were very much reactive, and then they a violent reign of terror, right? So that was there. You can imagine. Wait a minute, and concluded with Napoleon Bonaparte's coup in 1799, और उन्होंने उसको ओवरथ्रो कर लिया. सो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के ये स्टोरी है टेल ऑफ टू सिटीज़ के पहले आप इस स्टोरी का बैकग्राउंड बताती हूँ मैं. इसके बाद यू जस्ट रिमेंबर द number of examples and you can think whenever you in fact you can watch the videos which are available in Google. But yes, before proceeding, uh, Charles Dickens' novel A Tale of Two Cities is a historical fiction work, right? तो आपको है कोर्स में कि किस कैटेगरी के वर्क है. तो ये हिस्टोरिकल है क्योंकि इट इज़ बेस्ड ऑन हिस्ट्री एंड सेट ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम में सेट हुआ है, डिपिक्टिंग द tumultuous years leading to reign of terror in France through the intertwined lives of fictional characters like Charles Darnay, an ex-aristocrat, and Sidney Carton, a dissolute lawyer, alongside a real historical event such as the storming of the Bastille. तो चार्ल्स डिकन एक ऐसा नॉवल है जो हिस्ट्री बेस्ड है और सेट ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. इसीलिए अभी हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा क्योंकि ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम में ही इसको सेट किया गया है. डिपिक्टिंग द tumultuous years leading to the reign of terror in France, कि कितना ज़्यादा टेरर था उस समय थ्रू
द इंटरविन लाइफ्स ऑफ फिक्शनल कैरेक्टर्स। उन्होंने फिक्शनल कैरेक्टर्स के थ्रू बताया, एक्चुअली ये हिस्टोरिकल है और रियल फिक्शन भी कह सकते हैं हम। लाइक चार्ल्स डार्ने उसका हीरो है, जो एक एक्स एरिस्टोक्रेट है, और सिडनी कार्टन है अ डिसोल्यूट लॉयर जो बड़ा केयरलेस है और पर बहुत लॉयल है, अलोंगसाइड रियल हिस्टोरिकल इवेंट्स सच एज द स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टाइल। और बेस्टाइल में जैसे अटैक हुआ था तो इसमें भी वही दिखाया है। The novel contrasts the relative peace of London with the chaos of Paris। तो दो सिटीज़ है, लंदन में शांति है और पेरिस में बहुत ज़्यादा मतलब हलचल है। एंड एक्सप्लोरिंग थीम्स ऑफ डुअलिटी, सेक्रीफाइस, राइट। तो ये थीम्स इसमें डुअलिटी है, डबल स्टैंडर्ड कह सकते हैं, सेक्रीफाइस है, एंड द करप्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ बोथ एरिस्टोक्रेटिक टायरनी, जिन्होंने बहुत ज़्यादा टैक्स लगाना और बहुत जाति करने लगे थे रिच लोग गरीबों के ऊपर, एंड रिवॉल्यूशनरी एक्सेस, और बहुत ज़्यादा चेंजेस आए। फिर अल्टीमेटली शोइंग हाउ सोसाइटल अपहीवल अफेक्ट्स इंडिविजुअल लाइफ्स। तो हमें ऐसा लगता है कि जोग्राफिकली अगर कुछ पॉलिटिकल वर्ल्ड में चल रहा है तो हम डायरेक्ट उससे अफेक्ट नहीं होते, पर हम होते हैं, हमारी लाइफ में भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसका इफेक्ट होता है। तो बस यही इस नावल में बताया है। तो मैं आपसे ये कह रही थी कि आप इस नावल को इमेजिन करने से पहले आप सद्दाम हुसैन, इराक के जो का लीडर था, उसको एक बार आप देख लो। उसके बहुत सारे वीडियोस हैं कि उसको कैसे खात्मा हुआ, उसको कैसे डिक्टेटर था वो, और वो कैसे उसने लोगों के साथ ज्यादती की। सारे इन गूगल में अवेलेबल हैं वीडियोस, तो आप देखो और समझो कि बस वैसे ही अपहीवल इसमें इस नावल में आप इमेजिन कर पाएंगे। आप गद्दाफ़ी को देख सकते हैं, गद्दाफ़ी के साथ भी वही हुआ था। फिर श्रीलंका में भी हुआ था, अटैक हुआ था। पॉलिटिकल चेंजेस जब आते हैं तो इस तरह के अपहीवल, जब बहुत ज़्यादा इस तरह की बातें होती हैं तो फिर लोग कहते हैं कि भाई अब नहीं, अब तो वहाँ पर फिर डेमोक्रेसी आ जाती है। तो इस तरह का बहुत अच्छा नावल है ये, और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। तो चलिए अभी हम देखते हैं इसको, क्योंकि आपको भी पता है कि ये आपने सुना होगा रामधारी सिंह दिनकर जी ने बड़ा अच्छे से लिखा है कि सिंहासन खाली करो की जनता आती है, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुग उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन करो की जनता आती है ना। तो ये एक तरह से कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुख पुगा उठी, बहुत दिन से लोग सहते 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 और फिर उसके बाद सोने का ताज पहन इठलाती है, और अब दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो। तो फिर लोगों ने एक से दूसरी चिंगारी उठ गई और उन्होंने कहा कि बस अब बहुत हुआ, सिंहासन खाली करो की जनता आती। तो राम का आधारित दिनकर रामधारी से दिनकर जी बड़े ही बहुत ही इंटेलिजेंट ऑथर थे हिंदी के, जिन्होंने ये सब कहा। तो आपको मैं इसलिए इतना बता रही हूँ क्योंकि आप उस इमोशंस को फील कर पाओगे। तो आप सद्दाम हुसैन की कुछ वीडियोस देख लो, गद्दाफ़ी के देखो, इनकी एंडिंग कैसे हुई। और इस लाइन को याद रखो कि चिंगारी जो बुझी हुई राख में से फिर लोग सहते सहते और फिर गुस्सा फूट पड़ा लोगों का, इस तरह का कुछ हमको इसमें देखने मिलेगा। मैं यहाँ पे स्टोरी मन से बोल रही हूँ, आपको बता रही हूँ कि जैसे इसमें सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले हम मिलते हैं इनसे, जर्विस से, है ना। तो ये जो जर्विस है, जर्विस है ना, जर्विस लॉरी, ये जो है ये डॉक्टर एलेक्जेंडर है ना, डॉक्टर एलेक्जेंडर, राइट, उनके फ्रेंड हैं। ये दोनों गुड फ्रेंड्स हैं, ठीक है। और इनकी डॉक्टर एलेक्जेंडर की बेटी है जिसका नाम है लूसी। तो अभी क्या होता है, जब नॉवेल ओपन होती है तो यहाँ पे क्या होता है कि अलेक्जेंडर अपनी
इसको बताता है, लूसी को बताता है कि चलो तुम्हारे फादर अलाइव हैं और हम उनको लेने लंदन पेरिस जा रहे हैं, ऐसा बताते हैं। तो वो बड़ी खुश होती है। बहुत यंग और ब्यूटीफुल लड़की है लूसी, लूसी मैनेट, और ये डॉक्टर मैनेट है, अलेक्जेंडर मैनेट। तो ये लोग फिर वहाँ पे उनको बेस्टाइल जेल में लेने जाते हैं, ये दोनों लेने जाते हैं, है ना। किसको? इनको लेने जाते हैं। अब क्या होता है कि ये तो यहाँ चले गए। उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ कि वहाँ जाते हैं जब पेरिस में, तो वहाँ पे डॉक्टर मैनेट जो है, इनको इस हाल में देखकर लूसी बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि ये एक बेंच में बैठकर और यहाँ पर कहीं ऐसे खूब इस तरह का लंबी दाढ़ी और थोड़ा सा शैबी लुक, और पहचानते ही नहीं है, वो बहुत बूढ़े और बहुत कमज़ोर से कुछ ऐसे दिखते हैं। तो लूसी देख के रोने लगती है, और तभी वो खुद से प्रॉमिस करती है कि आई विल ब्रिंग बैक माई फादर। मैं उनको बिल्कुल, मेरे फादर, माई फादर विल बी रिकवर्ड वेरी सून, बिकॉज आई विल टेक केयर, मैं अपने पापा की केयर करूँगी और वो वापस आ जाएंगे, ऐसा सोचती है। और फिर ये तीनों लोग वापस आ जाते हैं। अच्छा, ये कहाँ पर रहती है? ये डेवर में रहती है, इसके प्लेस का नाम डेवर है। तो यहाँ से ये जो जर्विस लॉरी है वो इसको लेता है सबसे पहले। जर्विस लॉरी किसको लेता है? जर्विस लॉरी इसको लेता है, एलिज़ाबेथ इसको, लूसी को, और फिर ये लोग इनको लेने जाते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब ये जाते हैं रास्ते में, तो यहाँ पे इनको फादर को वापस ले आए, दुखी होती है पर ले आते हैं। तो ऑन द वे इनको कुछ ऑफिशियल काम से जब ये लंदन आ जाते हैं, तो इनको मिलना पड़ता है चार्ल्स डार्ने से। तो कोर्ट में इनका मिलना होता है, कोर्ट में जब कुछ ट्रायल हो रहा होता है, तो वहाँ पे चार्ल्स डार्ने भी आता है। तो चार्ल्स डार्ने और लूसी एक दूसरे को देखकर, और दे लव ईच अदर, है ना। तो कौन कौन? चार्ल्स डार्ने और लूसी, है ना। तो ये एक दूसरे को देख के प्यार करने लगते हैं। अच्छा, अब चूँकि चार्ल्स डार्ने भी लंदन में रहता है ना, तो लूसी चार्ल्स डार्ने से ये चार्ल्स डार्ने और सिडनी कार्टन, मैं बताती हूँ इसमें, ये है सिडनी कार्टन, है ना। ये सिडनी कार्टन है। तो चार्ल्स डार्ने, सिडनी कार्टन, और ये सिडनी कार्टन है, ठीक है। तो यहाँ पे बताती हूँ मैं आपको। तो चार्ल्स डार्ने, है ना, और इसका एक फ्रेंड होता है स्टेयर, लॉयर होता है वो, मिस्टर स्टेयर, राइट, स्टेयर, और सिडनी कार्टन, ये तीनों जो हैं ये अच्छे दोस्त हैं, राइट। तो तीनों ये हैं, दे आर गुड फ्रेंड, ये तीनों 1, 2 एंड 3। ये जो दोनों हैं ये लॉयर हैं, पर ये चार्ल्स डार्ने के फ्रेंड हैं। अब ये टाइम टू टाइम कहाँ विजिट करते रहते हैं? लूसी के घर। तो सिडनी कार्टन और स्टेयर जैसे ही लूसी को देखते हैं फर्स्ट टाइम, तो उनको भी बहुत अच्छी लगती है लूसी। वो सोचते रहते हैं कि उसको प्रपोज करेंगे, लेकिन इसी बीच में चार्ल्स डार्ने सीधे डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट से बात कर लेता है। डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट जो है वो कौन है? अलेक्जेंडर मैनेट, ये, है ना, ये मैनेट ये इनसे बात करता है। तो अलेक्जेंडर मैनेट अब बिल्कुल ठीक हो गए हैं, और वो 18 साल से, ये याद रखना कि वो कितने साल बेस्टाइल जेल में रहे थे? 18 ईयर बेस्टाइल जेल में रहे वो, इसीलिए वो वैसे हो जाते हैं, बेस्टाइल जेल में रहते हैं। लेकिन अब वो एकदम ठीक हो गए, और जब चार्ल्स डार्ने उनसे बोलता है कि मुझे लूसी पसंद है, मैं उसे शादी करना चाहता हूँ, तो चार्ल्स डार्ने को अच्छा लगता है, अलेक्जेंडर को चार्ल्स डार्ने अच्छे लगता है, तो वो हाँ कह देते हैं। थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, लेकिन वो हाँ कह देते हैं। अब शादी हो जाती है, और शादी जैसी होती है तो इनको अलेक्जेंडर को पता चलता है कि ये तो
ये जो मेरा दामाद है वो किस फैमिली से आया है, एवरमोंट फैमिली है, एवरमोंट फैमिली। तो ये तो एवरमोंट फैमिली का है, तो उनको बहुत शॉक लगता है और वो 9 डेज के लिए फिर से वापस से मैट जैसे हो जाते हैं, फिर जूते बनाने लगते हैं, क्योंकि उनको उनको बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, धक्का लगता है कि अरे मेरे बेटी के लिए इतना ख़राब प्रपोज़ल, ये तो बहुत ही क्रिमिनल बैकग्राउंड से है। तो फिर जो जर्विस है, जर्विस लॉरी है ना, जर्विस लॉरी उसका फ्रेंड है ना, वो समझाता है अलेक्जेंडर को कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, चार्ल्स डार्ने बहुत अच्छा लड़का है, वो भले ही फैमिली वैसी होगी लेकिन ये लड़का बहुत अच्छा, और ये तो लंदन में रहता है, पेरिस में रहता ही नहीं। तो फिर वो 9 दिन में रिकवर हो जाते हैं और फिर इधर लूसी और उसका हस्बैंड मतलब चार्ल्स डार्ने ये हनीमून पे जाते हैं, फिर घर आ जाते हैं। अच्छा, ये सब जो स्टोरी शुरू होती है वो होती है 1755 में अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट। अब क्या हुआ, 1780 आ गया। तब तक ये कौन कौन है, अब लूसी और चार्ल्स डार्ने, ये इनकी शादी हो गई, प्रेग्नेंट भी, फिर उनको एक बच्चा भी हो जाता है, बेटी हो जाती है एलिजाबेथ करके, और वो लोग खूब अच्छे से रहते हैं। समय बीत जाता है, 1780 आ जाता है। एक दिन चार्ल्स डार्ने, ये लोग सब कहाँ रह रहे हैं, ये लंदन में रह रहे हैं, मतलब इंग्लैंड में रह रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे ये इंग्लैंड में रह रहे होते हैं, तो इनके पास एक किसके पास, चार्ल्स डार्ने के पास, चार्ल्स डार्ने के पास किस गैबल एक लेटर देता है, गैबल है ना, वो लेटर भिजवाता है, वो इनको एक लेटर देता है। यहाँ पे, यहाँ पर एक लेटर आता है, और इस लेटर में वो कहता है कि आप जल्दी आइए क्योंकि मैं बहुत ट्रबल में हूँ। तो चार्ल्स डार्ने कहाँ पर है, ये इंग्लैंड में है ना, और ये कहाँ है, ये पेरिस में है। अब ये जैसे ही लेटर पढ़ता है तो उसमें वो बताता है कि मेरे को मार डालेंगे ये लोग, आपको आना पड़ेगा मुझे बचाने के लिए, मुझे जेल में बंद कर दिया। बेस्टाइल जेल से लेटर लिखता है। तो चार्ल्स डार्ने, जो ये गैबल है, ये चार्ल्स डार्ने का बहुत लॉयल सर्वेंट है। तो ये घबरा के बोलता है लूसी से कि मुझे जाना पड़ेगा। तो ये पेरिस आ जाता है। अच्छा हाँ, इसी के बीच में एक बार और क्या होता है कि जब ये चार्ल्स डार्ने आता है तो मर्किस करके है, एवरमोंट फैमिली का, एवरमोंट फैमिली है ना। तो ये जो एवरमोंट फैमिली है, इसमें कौन कौन है एवरमोंट फैमिली में, इसमें चार्ल्स डार्ने के, चार्ल्स एवरमोंट है एक्चुअली, ये चार्ल्स एवरमोंट। तो मैंने बताया ना कि डार्ने तो उसने ऐसे इसका सरनेम है, छुपा के रखा है, परंतु उसका सरनेम एक्चुअली चार्ल्स एवरमोंट है। तो यहाँ पे इसके फादर रहते हैं और इसके अंकल रहते हैं, राइट। तो एक बार क्या होता है कि चार्ल्स एवरमोंट या चार्ल्स डार्ने कह लो, जब वो अपनी आइडेंटिटी छुपा के रहता है तो वो डार्ने बन जाता है। तो वो एक बार जब अपने घर जाता है, फ्रांस जाता है, तो इनका बहुत बड़ा बंगलो है, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे इस बंगलो में ये जाता है और ये लोग सब डिनर कर रहे, सो रहे होते हैं इसके अंकल, तो वो उनका कोई मर्डर कर देता है, और इस तरह से थोड़े थोड़े दिन में दोनों के फादर के और मदर का मर्डर, फादर का और अंकल का मर्डर हो जाता है। अब ये तो लंदन में रह रहा है और अब इसकी शादी हो गई, इसकी बच्ची भी हो गई। अब जब गैबल इसको लेटर लिखता है तो ये भागता हुआ पेरिस आता है। तो जैसे ही पेरिस आता है तो यहाँ पर क्या होता है, बेस्टाइल जेल में इसको, जेल में डार्ने को, चार्ल्स डार्ने को अंदर रख लिया जाता है। तो ये अलेक्जेंडर को, अपने ससुर को लेटर लिखता है कि आई एम कैप्टिवेटेड, मुझे बंद कर दिया है, मैं कैसे बाहर निकलूँ। तो अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ध्यान से सुनना कि अलेक्जेंडर अपने दामाद को बचाने आता है। तो अलेक्जेंडर जो है वो बड़ा फादर फिगर है, बड़ा स्पिरिचुअल फिगर माना जाता था। 18 साल तक जब तक वो जेल में रहा तो क्रिमिनल्स उसको बहुत आइडियल मानते थे। तो उसका काफ़ी अच्छा इम्प्रेशन था, वो किसी से आर्ग्यू नहीं करता था, वो क्रिमिनल था भी नहीं एक्चुअली, पर उसको पॉलिटिकली उसको कुछ कैप्चर कर लेते हैं ये लोग। अब क्या होता है कि वो रेकमेंड करता है जेलर से, तो जेलर मान जाता है क्योंकि अलेक्जेंडर का बहुत अच्छा इम्प्रेशन हुआ करता था अपने टाइम में।
तो वो कहता है कि मेरा दामाद है, और ये ऐसा नहीं है, वो भले एवरमोंट फैमिली से आता है लेकिन ये बहुत अच्छा है। तो उसके रिकमेंडेशन में इसको छोड़ दिया जाता है। किसको? चार्ल्स डार्ने को। अब चार्ल्स डार्ने छूट तो जाता है, लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे ये छूट के वापस आ जाता है, हम बाहर आता है। लेकिन इसी बीच में एक और स्टोरी है, ध्यान से सुनना, कि जब बेस्टाइल जेल है, सपोज़ ये बेस्टाइल जेल है ना, तो ये बेस्टाइल जेल ऐसा है कुछ, ठीक है। तो अब यहाँ पे बेस्टाइल जेल में यहाँ पे ऐसा, आपने चिमनी सुनी होगी, चिमनी रहती ना, ऐसे चिमनी रहती है, तो वो चिमनी में ये अ, एक लेटर मिलता है इसको, चिमनी में इसको एक लेटर मिलता है। किसको? एक लेटर है चिमनी में रखा है। वो कौन, किसको मिलता है ये लेटर? अब मैंने बोला ना कि आप इमेजिन कर लो सद्दाम हुसैन और ये सब, कैसे लोग, भीड़ भाड़, कितना अफरा तफरी होती है। तो उसमें क्या होता है, मैं आपको फ़ोटो दिखाती हूँ, इस तरह का आप इमेजिन कर सकते हो। ये ऐसा है ना, कि यहाँ पे ये बेस्टाइल जेल में इस तरह का सीन है ना। यहाँ पे सारे लोग कुछ भी कर रहे हैं, जिसकी जो मर्जी है, मार रहे हैं, कूट रहे हैं एक दूसरे को। तो इस तरह का माहौल रहता है। तो वहाँ पे जब आप इसमें श्रीलंका का एक वीडियो देखना, उस वीडियो में वहाँ पे जब वहाँ की सरकार को जब गिराया गया था, तो लोग कैसे उनके राजमहल में घुस गए थे। और तो ऐसा ही बेस्टाइल जेल में कोई नहीं जा सकता, वहाँ सीवियर क्रिमिनल जाते हैं। लेकिन अब सब पूरी जनता फ्रांस की वहाँ घुस जाती है और ऐसे तोड़ फोड़ होती है। तो उसमें क्या होता है कि एक मैडम डिफार्जे होती है ना। तो मैडम उसमें ये होता है मैडम डिफार्जे, राइट। तो ये जो मैडम डिफार्ज है ना, ये और इनका हस्बैंड मिस्टर डिफार्ज, ये दोनों बेस्टाइल जेल में जाते हैं। और याद रखिए कि डिफार्ज फैमिली वर्कड फॉर डॉक्टर अलेक्जेंडर। जब डॉक्टर अलेक्जेंडर मेडिको है ना, ये डॉक्टर हैं, तो इनकी जब क्लिनिक चलता था, जब ये बिल्कुल अच्छे थे 18 साल पहले, तो इनके साथ इनके को हेल्प करने के लिए डिफार्ज फैमिली काम करती थी इनके लिए। लेकिन क्या हुआ कि जब अलेक्जेंडर को जेल में डाल दिया गया, तो फिर इन्होंने, डिफार्ज फैमिली ने क्या करी, अपनी एक वाइन शॉप खोल ली, है ना। अब क्या हुआ कि वाइन शॉप तो डाल ली। तो आपको मैंने बताया कि जब लूसी उनको फ्री करवाने आती है, लूसी और जर्विस, उनका फ्रेंड, अलेक्जेंडर का फ्रेंड जर्विस लॉरी और लूसी, तो तब क्या होता है कि ये लोग कुछ समय के लिए अलेक्जेंडर को अपनी शॉप के बेसमेंट में रख लेते हैं, है ना, क्योंकि ये लोग बहुत वफादार हैं अपने मालिक के लिए। लेकिन क्या होता है कि अब फिर स्टोरी मैंने आपको बताई कि जेल में डाल दिया, इसको चार्ल्स डार्ने को भी बंद कर दिया, फिर उनकी रिकमेंडेशन पे, अलेक्जेंडर मैनेट की रिकमेंडेशन पे छोड़ दिया। लेकिन अब क्या हुआ कि दोबारा जब वो लेटर मिल जाता है, तो उस लेटर में क्या लिखा रहता है, अलेक्जेंडर कभी वंस अपॉन अ टाइम उस लेटर में लिखता है कि मुझे ज़बरदस्ती जेल में डाल दिया। किसने डाला? तो वहाँ के पेरिस के लोगों ने। क्यों? क्योंकि मैंने, और किसने डलवाया था? एवरमोंट, जिसका मर्डर हो गया, उसने। क्योंकि मैंने देखा कि एवरमोंट फैमिली में चार्ल्स डार्ने के अंकल और चाचा ने मिलकर एक छोटी बच्ची का रेप किया और उसका मर्डर कर दिया, गाड़ी से उसको जानबूझ के मार डाला, उसके ऊपर गाड़ी चला दी। तो वो कहता है कि मैंने ये सब होते देख लिया, तो मुझे जेल में बंद कर दिया, ऐसा उसने उस लेटर में लिखा। तो ये जो लेटर है, ये डिफार्ज फैमिली को मिल जाता है, क्योंकि डिफार्ज फैमिली तो अलेक्जेंडर को पहले से जानती थी। तो जब ये बेस्टाइल जेल में अंदर जाते हैं, तो देखते हैं कि अलेक्जेंडर किस बैरक में था। बैरक समझते हैं ना, कमरे अलग अलग उनके, जो रहने की जगह। तो वो वहाँ पे चिमनी जो होती थी, ठंड में चिमनी जलाते हैं, जो पुराने समय में आपने देखी होगी। तो वो जो चिमनी है वहाँ पे, वो
ये लेटर छुपा के रखता है अलेक्जेंडर, पर आते समय वो भूल जाता है, नहीं उसको तो होश ही नहीं रहता ना। वो तो जब कभी अच्छा था 18 साल पहले नया नया जब वो गया था, तो उसने लिखा कि मुझे देखो कैसे जेल में डाल दिया और मैंने ये देखा, और एवरमोंड मार्किस एवरमोंड ने एक बच्ची का रेप किया और दोनों उसके चार्ल्स डार्ने के पापा चाचा ने मिलके मार डाला उसको, फिर उनको भी मार डालते हैं उसके पापा चाचा को। ऐसा सब कुछ ये लिखा रहता है उसमें, वो उस लेटर में। तो अब यहाँ जब चार्ल्स डार्ने फ्री हो गया तो मैडम डिफार्जे फिर एक एप्लीकेशन लगाती है कि एवरमोंट फैमिली भले ही वो मर गए, लेकिन चार्ल्स डार्ने को ही पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब आपके घर वालों ने किया। तो वो उसको फिर से जेल में डाल देते हैं। अब दोबारा ये फिर से अलेक्जेंडर रिकमेंडेशन लगाता है, बहुत रिक्वेस्ट करता है, वो बिल्कुल नहीं सुनते। वो कहते हैं कि नहीं नहीं, ये यही है इस फैमिली में, तो ही हैज़ टू पे। अब वहाँ पे क्या होता है कि अ, ये बहुत घबरा जाता है अलेक्जेंडर। तो जब लॉ इसके इसमें देखो एक और कैरेक्टर अब आता है, और वो है बलसाड, है ना। तो बलसाड जो है, ये बलसाड वहाँ से ये कौन है, ये स्पाई है बलसाड। ये स्पाई है, मैसेंजर है या गुप्तचर है ना। तो ये क्या करता है कि ये वलसाड से सिडनी कार्टन जो है, सिडनी का, अच्छा, सिडनी कार्टन और चार्ल्स, एक बात और मैं बताना भूल गई थी, ये बहुत ज़्यादा रिजेंबल करते हैं, एक दूसरे से बहुत मिलते हैं, है ना। तो सिडनी कार्टन कहता है कि अब ऐसे में तो चार्ल्स डार्ने के अगेंस्ट जो कैपिटल पनिशमेंट है वो डिक्लेयर हो जाता है कि इसको मारना है, इसको हैंग करना है, क्योंकि भाई इसकी फैमिली ने ऐसा किया है। अच्छा, मैडम डिफार्जे चार्ल्स डार्ने के अगेंस्ट क्यों है, ये भी एक स्टोरी है। क्योंकि वो जो बच्ची जिसका रेप हुआ था, वो मैडम डिफार्जे के फैमिली की बच्ची थी, इसीलिए डिफार्जे फैमिली एवरमोंट फैमिली से बहुत ज़्यादा चिड़ी हुई है और उनको बदला लेना ही है। तो अब चार्ल्स डार्ने को ही कैपिटल पनिशमेंट होने वाला है, तो मतलब उसको हैंग करने वाले हैं। तो जैसे ही सिडनी कार्टन सुनता है ये बात, तो वो बलसाट से कहता है कि देखो, तुम यहाँ गुप्तचर के किसी को पता नहीं है, लेकिन तुम सारी बातें बाहर लीक कर रहे हो, और अगर तुमने मेरी हेल्प नहीं की, फेवर नहीं किया, तो मैं तुमको जेल में डलवा दूंगा। मैं तुमको बता दूंगा, सबको रिवील कर दूंगा कि तुम यहाँ गुप्तचर हो, तुम स्पाई हो, तो तुम मेरा एक फेवर करो। तो फिर वो पूछता है कि क्या करूँ, तो कहता है कि ये जो सिडनी कार्टन है, ये बड़ा सवेरे से ड्रिंक करना, गंदे कपड़े पहनना, बहुत केयरलेस है, क्योंकि इसका कभी ब्रेकअप हो गया होता है। तो ये कह पर बहुत अच्छा लॉयर, इंटेलिजेंट लॉयर रहता है ये। तो ये कहता है कि तुम एक काम करो कि मेरी शक्ल तो चाल तारने से बहुत मिलती है, तो तुम एक काम करो कि मुझे अंदर ले चलो जहाँ चार्ल्स डार्ने को रखा है, और बाहर स्टेयर से, और बाकी फ्रेंड से कहता है कि गाड़ी तैयार रखो जिसमें अलेक्जेंडर, है ना, डॉक्टर अलेक्जेंडर, डॉक्टर अलेक्जेंडर और लूसी अलेक्जेंडर, है ना, लूसी मैनेट, डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट, डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट, राइट, लूसी मैनेट और उनकी बच्ची एलिजाबेथ मैनेट, इनको एक कार में तैयार रखो, यहाँ पे एक गाड़ी में, है ना, इनको तैयार रखो। और मैं क्या करने वाला हूँ, मैं तुरंत किसको लेके आ रहा हूँ, चार्ल्स डार्ने को लेके बाहर, है ना। तो वो क्या कहता है कि देखो, मेरे को तो चार्ल्स डार्ने जैसा ही दिखता हूँ मैं, तो तुम एक काम करो। तो वो ट्रैंकुलाइज़र लेके जाता है और बेहोशी की दवा देता है चार्ल्स डार्ने को। तो चार्ल्स डार्ने बेहोश हो जाता है, वहाँ अंदर चला जाता है जेल के अंदर। तो जैसे ही बेहोश होता है, तो ये अपने कपड़े चार्ल्स डार्ने को पहना देता है। और जैसा आपने देखा होगा, क्रिमिनल्स को वहाँ के कपड़े पहनना पड़ता है, वहाँ की ड्रेस होती है एक, वो पहनना पड़ता है। और फिर अब इसको तो हैंग करने वाले हैं, तो उसको सब तैयारी हो रही होती है। तो ये उसको अपने कपड़े पहना देता है, और वो तो बेहोश हो गया, चार्ल्स डार्ने को कुछ होश ही नहीं है। और कहता है बलसाट से कि तुम इसको ड्रैग करके बाहर ले आओ चुपचाप से, इसकी बॉडी को। और मतलब अभी तो वो अनकॉन्शियस है ना, तो उसको लाता है, और वो कार बिल्कुल रेडी है, जिसमें कौन कौन बैठे हैं, अलेक्जेंडर मैनेट, लूसी मैनेट और उनकी मतलब उनकी ग्रैंड डॉटर, है ना, अलेक्जेंडर की या लूसी की बेटी। और यहाँ पर चार्ल्स डार्ने को ये कार में डालते हैं और सीधे इंग्लैंड भाग जाते हैं। और अब क्या होता है
कि ये कौन कपड़े पहन चुका है उसके सिडनी कार्टन। तो ये कपड़े पहना रहता है और इसको बस अब हैंग करने वाले, तो इसको गिलेटिन कहते हैं। यहाँ पे ये ब्लेड है, तो जैसे ही यहाँ पर सिर रखेंगे तो वो कट जाता है, तो ये खुद को सेक्रीफाइस कर देता है और स्टोरी एंड हो जाती है। तो जब वो खुद को लास्ट में सेक्रीफाइस करता है तो वो कहता है कि मैंने लाइफ में कुछ बहुत अच्छा नहीं किया है। आप इसमें नेट से निकाल के देख लेना, इसका जो लास्ट लाइन है वो बड़ी इमोशनल है कि मैंने अपनी लाइफ में पहली बार ये एक बहुत ही अच्छा काम किया है कि आई सेव लूसीज लाइफ, क्योंकि लूसी को चाहता था वो, तो लूसी की फैमिली को के लिए उसने इसलिए इतना सेक्रीफाइस किया बिकॉज लूसी मस्ट बी हैप्पी, है ना। और फिर वो लूसी सेव्ड अलोंग विद फैमिली मेम्बर्स, और इस तरह से हैप्पी एंडिंग तो है, लेकिन असली जो इसका हीरो है वो सिडनी कार्टन, वो उस तरह से बड़ी ट्रैजिक एंड है क्योंकि उसकी डेथ इस तरह से हो जाती है, मर्डर, उसको हैंग कर दिया जाता है। बट हियर स्टोरी इज finished, right? So thank you so much, and if you have any problem you can ask. Yeah, I would like to show you some of the pictures which I have collected. कि देखो ये 4 लोग हैं, इसमें ये कौन है, ये है डार्ने, है ना, ये डार्ने है, ये लूसी है, ठीक है, ये उसकी बेटी है एलिजाबेथ, और ये है डॉक्टर मैनेट, ये डॉक्टर मैनेट है, डॉक्टर, ये डॉक्टर मैनेट है, कौन से, मैनेट, है ना, ये लूसी मैनेट है, ये डार्ने है, और ये उनकी बेटी है। फिर ये मैंने बताया फ्रांस का, आप ऐसे करके देख सकते हैं कि ये फ्रांस में जब ये चल रहा था बेस्टाइल जेल में, बेस्टाइल जेल का सीन आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं। मैडम एंड मॉन्सियर डिफार्ज, ये जो हैं ये दोनों इस किसके घर काम कर चुके होते हैं, ये डॉक्टर अलेक्जेंडर के घर में काम करते हैं। अब इनकी वाइन शॉप चलती है ना। तो ये मैडम एंड उसका पति है डिफार्ज, ये एलिजाबेथ बैठी है और ये देख रहा है, ये कौन है, ये सिडनी कार्टन है ना। तो ये एलिजाबेथ को देखता है, पर वो कहता है कि मैं तुमको सेव करूँगा, डोंट वरी, और फिर वो उसको सेव करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये देखो ये हैंग होने जा रहा है, नाउ ही इज़ मूविंग फॉर हैंगिंग। तो ये कौन है, ये सिडनी कार्टन है जो खुद को हैंग कर देता है, मैंने मर जाता है कार्टन। तो ये यहाँ स्टोरी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच, एंड योर क्वेश्चंस आर ऑलवेज वेलकम। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।